जो आदमी दिन में 3 घंटे सोता है, जिसकी माँ भी मतलब माँ एक छोटे से गाँव में रहती थी, जिसके परिवार के कोई भी बाकी लोग गवर्नमेंट में हैं नहीं या कोई पद पे है नहीं, वो सिर्फ़ देश के बारे में सोच रहा है कि हर वक़्त उनके दिमाग में देश की भलाई है। और लोग उनकी पॉलिसी की निंदा कर सकते हैं या वो लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और वो कहते भी हैं। अगर मैं मेरी पॉलिसी आपको ठीक नहीं लगे तो आइए और हमें बताइए कि हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये खुद कई बार पार्लियामेंट में कह चुके हैं। मुझे लगता है कि ये ट्रू लीडर का एक सही रूप है और मैं हमेशा अपने प्रधानमंत्री के साथ ही रहूँगा। मैं हमेशा उनको सपोर्ट करूँगा और अगर मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मुझे बड़ा गर्व भी होगा। The aura that he carries and the energy that he has, it really inspired all of us. उन्होंने हमसे बहुत ही पर्सनल लेवल पर आकर बात की थी। उनकी इंटेलिजेंस का, उनकी ह्यूमिलिटी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने हमें बताया था कि कैसे सिनेमा के ज़रिए हम समाज में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं और कैसे सिनेमा के ज़रिए हम अपने देश को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से पूरी दुनिया हमारे देश भारत को एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी के रूप में, एक बहुत पावरफुल नेशन के रूप में देख रही है। First of all, Namaste ji, and this is a great honor, privilege to be speaking about the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Very happy to speak. The first time I met him was in 2014 in Gandhinagar, and I think I actually manifested that whole meeting, and I had been a great admirer of him, what he's been doing for Gujarat, and I was following him, and for quite some time, actually before that. And when the call came that I can meet Modi ji, I was in a jiffy. I was there, and I was in Gandhinagar, and I thought it will be a meeting, 10 minutes, 5 minutes. He'll just say, busy. He's a chief minister of the state and he's very busy. And that time, the whole BJP was preparing for the elections coming in a year, actually. And I thought the meeting will be in 5-10 minutes. The meeting was almost 1 hour plus, and it was just me and him. We were talking, and he had told me his vision for India and what he wanted for India. And he was looking at all the politics all around India and what is happening, what is going to happen. It was almost like a astrologer who will tell you what is going to happen in the future. It was so clear, so clear, and he was so humble. I mean, it was so easy to talk to him. So easy to talk to him. And he was talking my language. He was talking about my films, and he was talking about Andhra Pradesh and that time on AP, Andhra Pradesh and Telangana state, and exactly what is going to happen here. He knew. It's like he knew everything what was going to happen and what he wants to do. And I went there saying, sir, I have just come here to see a man who's going to be the next prime minister. That is why I'm here. I wanted to see my next prime minister. That much I always was inspired by you, and our country. I think our country deserves someone like you. Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. I hope I might be able to reciprocate the very warm hospitality you extended to me in March by hosting you here in New Zealand. But in the meantime, I wish you a very happy birthday. प्रणाम करती हूँ श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, जो भारत के ज्वलंत इतिहास का एक अनमोल रत्न हैं, जिनमें गौरवशाली भारत के इतिहास
के चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों का अद्भुत मिलन है। विरासत भी विकास भी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वसुधैव कुटुंबकम और ऐसे अनेक हमारे जो सूत्र हैं उनको लेके वो चले हैं, सार्थक करके दिखा रहे हैं। और कैसे कैसे लोक कलाएँ, शास्त्रीय कलाएँ, जनजाति की कलाएँ, संगीत हो, नृत्य हो, नाट्य हो, साहित्य हो, तरह तरह की कलाएँ, और भारत के कोने कोने से ऐसे ऐसे लोगों को उठा के उन्होंने पद्म अवार्ड दिलाया है जिनको कोई जानता नहीं था, लेकिन जिनका योगदान अद्भुत रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर हम धन्य हैं। भगवती कृपा करें और आप वर्षों तक जिए और ऐसे ही हमारा देश आपके साथ आगे बढ़ता रहे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उन्हें बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। इन दशकों में मैंने देखा है कि उन्होंने किस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय कला के धरोहर को बचाकर रखने का काम किया है, उसके संरक्षण का काम किया है और फैलाव का काम किया है। ये बहुत ही बहुमूल्य है, अतुल्य कार्य उन्होंने किया है। और मैं समस्त कथक जगत से की तरफ से उनको इस 75वें वर्षगांठ पर शुभकामनाएं पेश करती हूँ और फिर से बधाई देती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने देश को, देशवासियों को एक नई इज्जत, एक नई प्रतिष्ठा, एक नई दिशा, एक नया सम्मान दिया है। जितनी भी आपके लिए प्रशंसा की जाए उतना कम है। आपकी पॉलिसीज पाथ ब्रेकिंग रही है। आपका जो विजन है वो हमने इस देश में कभी नहीं देखा है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जुग जुग जियो मोदी जी। तन मन से स्वस्थ रहें और हमारे देश की प्रगति इसी हिसाब से आगे बढ़ती रहे। हम चाहते हैं कि हमारे देश को जितना आगे ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाएं और इसी तरह से लोगों का प्यार उन्हें मिलता रहे। Dear Prime Minister, dear Narendra, on the occasion of your 75th birthday, it is my great honor to extend my heartfelt wishes to you on behalf of the government and the people of Cyprus for your continued health, happiness and success. Your visionary leadership has inspired not only the people of India, but also strengthened the bonds of friendship and cooperation between our two nations. माननीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी की एबल गाइडेंस में हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ प्रोग्रेस हुआ है, इसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा बहुत कुछ बदलाव हुआ है। काशी तमिल संगमम जो माननीय प्रधानमंत्री का योजना था, उससे उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का जो कुछ प्रयास हुआ, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट परिणाम हमें मिला है।